السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ترین ایک خبر سامنے آ رہی ہے، جس میں فلسطین کے جو غزہ میں رہنے والے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ اوورال صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں فیضان رضوی صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، یہ سچویشن کیا ہے؟ کیا فلسطینیوں کو جو ہے وہ غزہ سے کیسے نکالا جا رہا ہے؟ بے دخل کیسے کیا جا رہا ہے؟ خفیہ طور پر بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیا، یہ چکر کیا ہے۔ اب غزہ کے معصوم فلسطینیوں سے ایک غیر رجسٹرڈ تنظیم ہے المجد فاؤنڈیشن، اس کے نمائندوں نے رابطہ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو یہ کہا گیا ان نمائندوں کی جانب سے کہ آؤ ہم تمہیں کسی اور ملک جو ہے وہ محفوظ طریقے سے منتقل کر دیں گے۔ اب غزہ کے معصوم فلسطینیوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ جی یلو لائن کون کراس کروائے گا، غزہ کی پٹی سے ہمیں کون نکالے گا، اسرائیلی درندوں سے ہمیں کون بچائے گا؟ تو تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ ظاہر ہے کوئی این جی او یا کوئی ادارہ، کوئی اس طرح کا نمائندہ جب بھی آپ کو ٹیلی فون کال کرے تو آپ اس طرح کے سوالات تو اس سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی، یلو لائن کے قریب کوئی غزہ کا معصوم بچہ بھی آنے لگے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھے گئے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کی جانب سے ان نمائندوں سے جو رابطہ کر رہے تھے مبینہ طور پر خبروں کے مطابق ان فلسطینیوں سے۔ تو ان نمائندوں کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ہمارے پہ چھوڑ دو بھائی، ہم تمہیں محفوظ طریقے سے گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں غزہ کی پٹی سے بھی نکالیں گے، یلو لائن بھی کراس کروائیں گے، اور تمہیں طیارے کے اندر بٹھا کر ہم تمہیں کسی اور ملک منتقل کر دیں گے، وہاں پر جا کر تم محفوظ زندگی اپنی گزارنا سٹارٹ کر دینا۔ تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں ہم ایک فارم بھیج رہے ہیں، وہ تم نے فل کرنا ہے اور فیس دینی ہے، اور ہماری گاڑی کا، ہماری بس کا انتظار کرنا ہے۔ بس تمہیں پک کرے گی اور ایئرپورٹ پر پہنچائے گی محفوظ طریقے سے، اور یہی ہوا۔ خبر یہ ہے کہ 153 جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں ان کو لینے کے لیے ایک بس آئی، جنہوں نے فارم فل کیا تھا، فیس دی تھی، ان کو وعدے کے مطابق یہ جو نمائندے تھے انہوں نے ایک بس بھیجی، ان کو اس بس کے اندر سوار کیا گیا، یلو لائن کراس کروائی گئی۔ یلو لائن کراس کروائی گئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یلو لائن کے قریب تو کوئی فلسطینی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو یہ جو اسرائیلی فوجی ہیں یہ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ اس بس نے یلو لائن کراس کی، اور جب یلو لائن کراس کی تو ان فلسطینیوں کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ اب ہمیں جو ہے وہ کسی اور ملک منتقل کر دیں گے۔ اب یہ بس جو ہے وہ غزہ کی پٹی سے نکلتی ہے، اسرائیل داخل ہوتی ہے، اسرائیل کے ایئرپورٹ پہنچتی ہے، وہاں پر طیارہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ ان غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو 153 کو طیارے کے اندر سوار کروایا جاتا ہے، اور وہاں پر ٹاٹا بائی بائی کر دیا جاتا ہے ان نمائندوں کی جانب سے جو ان سے رابطہ کر رہے تھے۔ اب یہ طیارہ کہاں پہنچتا ہے؟ کینیا پہلے یہ بریک لگاتا ہے طیارہ، اور کینیا سے پھر یہ ساؤتھ افریقہ، یہ طیارہ جو ہے اس کی ڈیسٹنی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ تھی، اور یہ طیارہ ساؤتھ افریقہ پہنچ جاتا ہے۔ اس طیارے کے اندر جو مسافر تھے وہ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اتھارٹیز ہیں وہ ان سے یہ پوچھتی ہیں کہ تمہارے پاس تو نہ ڈاکیومنٹس ہیں، نہ ساؤتھ افریقہ کا تمہارے پاس ویزا ہے تمہارے پاسپورٹس کے اوپر، تو ہم تو تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ اب یہاں پر 12 گھنٹوں یہ جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ کے اوپر کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کے پاس تو ویزا بھی نہیں ہے، ان کو کیسے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر کیسے الاؤ کیا جائے۔ اور اب اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ساؤتھ افریقہ کے ایون کے صدر جو رامافوسا ہیں وہ بھی انوالو ہوئے، ساؤتھ افریقہ کی اتھارٹیز انوالو ہوئیں، کچھ جو این جی اوز ہیں وہ انوالو ہوئیں، اور بالآخر یہ جو 153 فلسطینی ہیں ان کو ساؤتھ افریقہ نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے 3 مہینوں کے لیے تم یہاں پر جو ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر رہ سکتے ہو۔ اب اس معاملے نے بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں گریب کی ہوئی ہیں کہ یہ خفیہ طور پر جو غزہ کے معصوم فلسطینی ہیں ان کو غزہ سے، فلسطین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ فیضان صاحب، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آتے بھی ہیں، ان کے پاس وہاں پہ ویزا بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیا اس سارے معاملے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے، یا اس تنظیم کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسرائیل کا ہاتھ ہے؟ بالکل، آپ نے دونوں سٹوریز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ ایک تو سٹوری یہ گردش کر رہی ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ غیر رجسٹرڈ تنظیم ہے المجد فاؤنڈیشن، تو ان کی جانب سے اس طرح کے جو کرائسس ہوں، اس طرح کے جو ایریاز ہوں، اس طرح کے جو علاقے ہوں، تو وہاں پر اس طرح کی 2 نمبر تنظیمیں جو ہیں
वो फायदा उठाती हैं। तो एक वर्जन तो ये है। दूसरा वर्जन जो ज्यादा ऑथेंटिक है वो ये है कि इसराइल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर चाहे कोई तंजीम 2 नंबर है या 4 नंबर है, वो येलो लाइन कैसे क्रॉस करवाएगी, वो इसराइल के एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचेगी, वहां पर तैयारा कैसे इंतजार कर रहा होगा, वहां से रवाना कैसे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ महीनों पीछे ले जाऊं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर और नेतन्याहू ये इकट्ठे खड़े हुए थे व्हाइट हाउस के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहला दौरा था नेतन्याहू का व्हाइट हाउस का, और जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौर है उसमें पहला दौरा था, और इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि गजा के मासूम फलस्तीनियों को हम मुंतकिल करेंगे इजिप्ट और जॉर्डन, 2 कंट्रीज का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाम लिया गया। फिर जब इजिप्ट और जॉर्डन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि नहीं जी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं लेंगे, तुम गजा के मासूम फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करना चाहते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से बात कर रहा हूं और मैं गजा के मासूम फलस्तीनियों को वहां पर मुंतकिल कर दूंगा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। और जो इसराइल के वुज़रा हैं उनकी जानिब से साउथ अफ्रीका का नाम लिया गया था कि जी साउथ अफ्रीका मुंतकिल कर दो, ये जो गजा के मासूम फलस्तीनी हैं, साउथ अफ्रीका को बड़ी फिक्र है इनकी। साउथ अफ्रीका आपको मालूम है कि जो नस्ल कुशी का मुकदमा है आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ, वो दायर करने वाला मुल्क साउथ अफ्रीका था। ये रामाफोसा था जिसने इसराइल के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में दायर किया, और ये साउथ अफ्रीका मुकदमा जीत भी गया। अब इम्प्लीमेंट करना उसको इन अहकामात को वो आलमी अदालत इंसाफ का काम नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ सिर्फ फैसला दे सकती है, जो कि आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दे दिया। तो यहां से इसराइल की जानिब से ये कहा गया था कि जी साउथ अफ्रीका को इतनी फिक्र है, इतना शौक है, इतनी मोहब्बत है अगर फलस्तीनियों से, तो फिर ले लेना इनको, अपने मुल्क के अंदर बसा ले। तो ये जो काम इस एनजीओ की जानिब से किया गया, इस इदारे की जानिब से, तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके अल-मज्द फाउंडेशन के लिंक्स हैं इसराइल के साथ, और लिंक्स तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि आप येलो लाइन क्रॉस करवा रहे हैं, आप इसराइल के एयरपोर्ट से इनको रवाना कर रहे हैं। तो ये मिली भगत है इस एनजीओ के थ्रू, इस इदारे के थ्रू जो इसराइल है वो गजा के मासूम फलस्तीनियों को खुफिया तौर पर दीगर कंट्रीज के अंदर, और साउथ अफ्रीका की सिलेक्शन, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ मुकदमा क्यों दायर किया, तो उस वजह से अब ये जो इसराइल है इनकी जानिब से साउथ अफ्रीका इन मासूम फलस्तीनियों को भेजा जा रहा है। फैजान साहब, साउथ अफ्रीका का इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आया है? अच्छा, साउथ अफ्रीका मैंने आपको बताया कि सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं साउथ अफ्रीका की, इवन के रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के सदर हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। फिर एक एनजीओ आई और उस एनजीओ ने ये कहा कि ठीक है, इनको अलाउ कर दो साउथ अफ्रीका के अंदर, इनके रहने खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी। एनजीओ की जानिब से कहा गया कि इंसानी बुनियादों पर इनको अलाउ कर दो, अगर तुम इनको वापस भेजोगे तो फिर ये जो गजा के मासूम फलस्तीनी हैं इनको शहीद कर दिया जाएगा इसराइली फौजों की जानिब से। तो रामाफोसा, मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के सदर हैं, ये बहुत ज़्यादा इसराइल के खिलाफ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन्स के ऊपर हैं, इवन के मुसलमान ममालिक से भी आगे। ये वो कंट्री और ये वो लीडर था जिसने इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था आलमी अदालत इंसाफ में। तो रामाफोसा ने क्या कहा, एयरपोर्ट के बाहर गालिबन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो रामाफोसा की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday we had a plane of 160, we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo, and these are people from Gaza who somehow mysteriously were put on a plane that passed by Nairobi and came here. And I got to hear about it from my Minister of Home Affairs, wanting to know what do we do now. And I said, we cannot turn them back. Even though they do not have the necessary documents and papers, these are people from a strife-torn, a war-torn country. And out of compassion, out of empathy, we must receive them and be able to deal with the situation that they are facing. And it does seem like they were being, flushed out. We will get the details later, but from a humanitarian point of view, we could not return them from whence they have come, and we had to accept them, and they are now here, and we are going to be processing everything about them and then deciding precisely what needs to be done.
गुफ्तगू आपने सुन ली साउथ अफ्रीका के सरबराह रामाफोसा, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जी हम इनको अलाउ कर रहे हैं और फिर तहकीकात करेंगे। रामाफोसा ने कहा कि तहकीकात करेंगे कि इनको यहाँ पर भेजा किसने, ये यहाँ पर पहुंचे कैसे और इसके पीछे क्या खुफिया मिशन है और कौन इन्वॉल्व है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि इसराइल इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये खुफिया बेदखली है इसराइल की जानिब से और कौन कौन से कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। जाहिर है कि अमेरिका भी इस तरह की बात कर रहा था कि हम अफ्रीकी कंट्रीज के साथ बात कर रहे हैं और इन्हें हम मुंतकिल कर देंगे। तो ये रामाफोसा ने कहा कि चलो 90 दिन के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, एनजीओज इनका ख्याल रखेंगी और फिर हम तहकीकात करेंगे कि और इसकी तह तक पहुंचेंगे इस मामले की कि मामला जो है वो किसी एनजीओ की 2 नंबरी से कहीं बहुत बड़ा मामला तो नहीं है, कहीं गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को खुफिया तौर पर बेदखल तो नहीं किया जा रहा। अभी तहकीकात जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से। जो ही ये तहकीकात मुकम्मल होंगी या फिर आगे बढ़ेंगी तो मज़ीद ये जो कहानी है ये मज़ीद खुलकर सामने आएगी। फैजान साहब, इस पर मुसलमान ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? अच्छा, मुसलमान ममालिक अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिर्फ एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जानिब से एक बयान सामने आया और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को वार्न किया, खबरदार किया कि इस तरह के जो खुफिया बेदखली का मिशन है इससे जो है आपने बिल्कुल मोहतात रहना है और इस तरह के किसी एनजीओ किसी नुमाइंदे की बातों में आपने आकर किसी जहाज़ के अंदर सवार नहीं हो जाना। जो इस तरह के नुमाइंदों की जानिब से ये मिशन जो है वो किसी के साथ मिलकर ये मिशन चलाया जा रहा है ताकि आपको सरजमीन फ़लस्तीन से खुफिया तौर पर बेदखल कर दिया जाए। तो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के अलावा अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक किसी मुसलमान मुल्क का जो रद्द अमल है वो सामने नहीं आया। हालांकि जितना बड़ा मामला है तो इस पर मुसलमान ममालिक की जानिब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले चंद घंटों में इनकी जानिब से वही मजम्मती अलामियों की लाइन लग जानी है। जो भी रद्द अमल सामने आएगा तो उस पर नज़र रखेंगे, अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। जंग बंदी का जो मायदा है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? अच्छा, जंग बंदी 3 जो लाशें हैं इसराइली कैदियों की, 3 लाशें उनकी तलाश अभी जारी है। बाकी लाशें हवाले कर दी गई हैं हमास की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ एक लाश हवाले की गई थी, उसकी शनाख्त का अमल अब से कुछ देर कबल मुकम्मल हुआ और इसराइल ने ये कहा कि हाँ ये हमारे कैदी की लाश है और बदले में 15 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनकी लाशें इसराइल की जानिब से हमास के हवाले कर दी गई हैं। यानी कि जंग बंदी मुआहिदा जो है वो चल रहा है और कुछ दिन के बाद, यूं कह लें कि मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद ये जंग बंदी मुआहिदा पहले फेज से दूसरे फेज के अंदर दाखिल हो जाएगा। फैजान साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो दूसरे फेज में जो है ये मुआहिदा जो है वो चला जाएगा। अगर दूसरे फेज में चला जाता है तो उसके बाद जो है क्या मुसलमान ममालिक ने ये तय कर लिया कि जो उनकी फोर्सेज जाएंगी वहाँ पे अमन मिशन के लिए तो वो जो गजा के हैं वहाँ पर उनकी क्या हथियार डलवाने के लिए अपनी कोशिशें करेगी या उसके ऊपर कुछ तय पाया है? अच्छा, वो दूसरा मरहला आप ठीक कह रहे हैं कि दूसरा मरहला ये है कि हमास की जमात हथियार डालेगी और अरब इस्लामिक कंट्रीज की जो फोर्सेस हैं जो डलवाएंगे हथियार वो जाकर गजा की पट्टी का कंट्रोल जो है वो संभाल लेंगे। अब ये होगा कैसे? वो डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा दिया अमेरिका ने और उसमें ये तरीका जो आप पूछ रहे हैं ना कि होगा कैसे, हमास की जमात हथियार कैसे डालेगी और जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी फौजें कैसे आगे जिम्मेदारियां संभालेंगी, क्या जिम्मेदारियां संभालेंगी, उनके जिम्मे क्या क्या काम होंगे, क्या हमास की जमात से हथियार लेना या टनल्स को तबाह करना, उनके जिम्मे ये काम भी होगा। अच्छा, इंडोनेशिया ने 20,000 जो फौजी हैं वो तैयार कर लिए हैं कि यूं ही ये मामला तय पाता है, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो अमेरिका की जानिब से जमा करवाई गई है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, यूं ही ये करारदाद मंजूर होती है तो यहाँ से इंडोनेशिया तो अपने फौजी रवाना कर देगा। इंडोनेशिया का तो कंफर्म हो गया। अब बाकी अज़रबैजान हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, मिस्र हो, किन कंट्रीज़ की फ़ौजें होंगी ये अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जिसमें अज़रबैजान का भी नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन पहले इन फ़ौजों की डिप्लॉयमेंट से पहले क्या होगा कि जो अमेरिका ने जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जमा करवाया है तो उस पर पहले वोटिंग होगी। उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को अगर मंजूर किया जाता है तमाम यूएनएससी मेंबर्स की जानिब से तो फिर ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इस पर अमल दरामद स्टार्ट होगा कि हाँ जी इस कंट्री की फौजें आ जाएं, इस कंट्री की फौजें आ जाएं। अच्छा, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेरिका की जानिब से जमा करवाया गया तो इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट रशिया ने
अपना एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो जमा करवा दिया है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या है? अमेरिका तो ये कह रहा है कि जी जो हमास की जमात है वो हथियार डालेगी और अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की फ़ौजें जो हैं वो गजा की पट्टी का कंट्रोल संभाल लेंगी, अमन मिशन जो है वो संभाल लेंगी, और 2 साल के लिए एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अबूरी हुकूमत है, वो आकर गजा की पट्टी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अबूरी हुकूमत संभालेगी, तब तक जब तक यहाँ पर मामलात जो हैं वो गजा की पट्टी के अंदर सीधे नहीं हो जाते। अब रशिया की जानिब से इन तमाम के तमाम नुकात को यूं कह लें कि मुस्तरद किया गया, और रशिया ने जो अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया तो रशिया ने कहा कि ये मसले फ़लस्तीन का हल कहाँ है, ये तो आप गजा की पट्टी के अंदर एक 2 साल के लिए पूरी हुकूमत या मुसलमान ममालिक आकर जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो यहाँ पर संभाल लेंगी कंट्रोल जो है, और गजा की पट्टी से जो इसराइल की फौजें हैं वो भी बाहर नहीं निकलेंगी। तो रशिया के जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो मैंने देखा है, और उसके अंदर बड़े तगड़े नुकात हैं जिनको मुसलमान ममालिक की जानिब से इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि वाह जी वाह, सलूट है, बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा आपका। रशिया ने कहा कि कोई ज़बरदस्त मंसूबा नहीं है, इसके अंदर आप गजा को और मगरबी किनारे को भी शामिल करें, और इसके अंदर मसले फ़लस्तीन का हल जो वजह है जिसकी वजह से इतनी कुर्बानियां हुई, इतनी जंग चली, इतना ज्यादा जो है वो शहादतें हुई, तो फिर वो मसला तो हल ना हुआ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है तो इसको रशिया की जानिब से अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया गया है, और रशिया का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यूं कहने के मसले फ़लस्तीन के हल को अगर देखें तो रशिया के जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुसलमान ममालिक की उस तरफ नहीं जाएंगे? अच्छा, मुसलमान ममालिक जो हैं वो मसला तो ये है कि मुसलमान ममालिक जो है ना वो किसी एक तरफ नहीं जा रहे, आधे इधर होते हैं, आधे उधर होते हैं, आधे रशिया के मंसूबे के साथ होंगे, आधे अमेरिका के मंसूबे के साथ होंगे, बल्कि साथ भी नहीं होंगे, ये पीछे खड़े हुए होंगे रशिया के, क्योंकि ये इसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अमेरिका से भी डर रहे होंगे कि नहीं हमने इसको कोई मशवरा नहीं दिया है, तो इसने खुद रशिया ने जो है वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश कर दिया। तो मुसलमान ममालिक की जानिब से कोई क्लियर मौक़िफ़ कि भाई रशिया ने ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ये जिसमें मसले फ़लस्तीन का हल है, ये रशिया को सबमिट करवाना चाहिए था कि मुसलमान ममालिक को सबमिट करवाना चाहिए था। रशिया क्यों सबमिट करवा रहा है? रशिया का क्या ताल्लुक है मसले फ़लस्तीन से, या मुसलमानों से, या नस्ल कुशी, या ये जो खुफिया तौर पर बेदखल किया जा रहा है? तो ये पहले तो शर्म की बात है मुसलमान ममालिक के लिए कि आपको इस तरह का कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अमेरिका के ड्राफ्ट के मुकाबले में आपको लाना चाहिए था। खैर, ये परमानेंट मेंबरशिप आपको मालूम है कि चाइना के पास है, रशिया के पास है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर, तो उसमें मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन नहीं है। P5 में मुसलमान कंट्रीज नहीं है। हाँ, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो मुसलमान ममालिक हैं। तो ये परमानेंट मेंबर की जानिब से ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया जाना, रशिया एक परमानेंट मेंबर है तो इसकी जानिब से जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया तो जाहिर है कि इसकी एक वर्थ है इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की, और इसके साथ मुसलमान ममालिक को खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये जो रशिया का मौक़िफ़ है, ये जो रेजोल्यूशन है, ड्राफ्ट है जो, तो ये मैंने आपको बताया कि मसले फ़लस्तीन के हल के लिए इस रेजोल्यूशन के तहत जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। फैज़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बड़ी तफसीली तौर पर जो है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके साथ रखी। इसकी मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी हम आपके साथ मज़ीद आने वाले व्लॉग्स में रखेंगे। आप राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।